of one and all present here, I welcome Janab Mushtaq Hussain Sahab. Thank you, sir, for graciously accepting our invitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं, सब्ज़े और दरख्त उसी के लिए सजदा करते हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराज को कायम किया। जज़ाकल्लाह खैर। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, the most gracious. It is He who has taught the Quran. He has created man. He has taught him an intelligent speech. The sun and the moon both follow his courses exactly computed. And the herbs and the trees both alike bow in adoration. And the firmament has He raised high, and He has set up the balance of justice. Thank you. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. పరమ కృపాశీలుడు అయిన దేవుడు ఈ ఖురాన్ను బోధించాడు. అయిన మానవుని సృష్టించి అతనికి మాట్లాడడం నేర్పాడు. సూర్యుడు చంద్రుడు ఒక నియమావళికి కట్టుబడి ఉన్నారు. నక్షత్రాలు వృక్షాలు అన్ని సాచంగా పడుతూ ఉన్నాయి. ఆయన ఆకాశాన్ని పైకి లేపాడు, రాసును నెలకొల్పాడు. ధన్యవాదములు. Janab Muhammad Maman Sahab, Deputy Registrar, Retired, Usmania University. Janab Mushtaq Hussain Sahab, Chairman, Parivar Group of Hotels. Janab Muhammad Abdul Qadir Sahab, Motivational Speaker, to come on the dais and occupy their places. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable VIPs of today's function, respected guests and invitees, dear parents, dear teachers and beloved students, congratulations to all for your achievements. Inshallah, very shortly we will award you for your outstanding performance. I really appreciate the results from the government school students also. The teachers who are working behind them are remarkable and deserve appreciation. Alhamdulillah, with the strenuous and continuous efforts of 60 years, today New Model High School students are shining brightly with colorful achievements. It is needed to be mentioned here that the fruitful efforts of my grandfather Janab late Mr. Iqbalur Rahman Sahab, followed by the efforts of my father, are the results of today's achievements. They put great efforts to provide diverse education that promotes self-discipline, sense of responsibility, building confidence and excellence in learning. Today, I see a large number of proud parents here whose wards excel out in SSC examinations. I congratulate all and I want to express my opinion to develop your children. Your child is very special
individual who needs a happy, secure and challenging environment in which he should grow. We are trying our level best to give the best morals to your children. We teach them to respect their parents, their elders and their teachers also. We want them to shine their name in the society, either she is a girl or a boy. We want them to be the honest and we are covering all aspects of the life. And now I request all the parents, please you also try to be part of the duty. Don't allow your children to use internet for much time. Keep an eye on them, what they are watching on the internet. Don't allow your children to wander outside unnecessary and see that they should sleep early and get up early. Check your boys not to stay outside of the house late night. Teach them to maintain neatness and teach them to offer prayers. If we and you together work to the good lessons to your children, inshallah your children will definitely be the good citizens of the country. Alhamdulillah, our Pasa students are spread widely throughout the world. They are serving the country as well as serving excellently in other countries in various fields and in various arenas. We are sure the students who pass out in the year SS examination will definitely bring good name and fame for themselves, for the parents and for the school. I wish you all the best. May Allah help you at every step of your life to make you a better person. Thank you. For presenting your precious thoughts with us. Now it's time for a wonderful program by Mr. Kalicharan sir. He is going to show us a number of mind-blowing mathematical tricks. And these are the students of SSC examination. So mathematics actually is a backbone of all the languages of the history of the future, and we have a number of mathematical magics, what we can say magic or the mathematics tricks, but we have to 5 to 6. So first of all let's start with the mind study numbers. So I need one student for writing. Abhishek, please. The difference between digit and numbers. So there are 10 digits starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 9. And we can write any 2 digit, 3 digit, 4 digit number. But I will not see. I will just stand here and we write. We will write any number, any digit number. Just because I just several numbers. Any number, 3 digits, 4 digits, 2 digits, 5 digits, any number. Did you write? For example, if you are written 1 to 2, write 3 to 1. Now let us subtraction. Subtract the smallest number from the biggest number. Listen, first you write any digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, any number. Right. Take a number. Now reverse the digits. Reverse. Do reverse. Now do the subtraction. Subtract the smaller number from the bigger number. Did you subtract? Okay. I think you got the answer. I think subtraction answer is what? Don't tell me the numbers. You keep in your mind one number from this answer. You keep one number in your mind. Tell me the remaining numbers. What actually one student is outside. Mr. Any number. Reverse the digits. Reverse. There is a subtraction.
do the minus. Good. Now keep one digit in your mind. Don't tell me that number. Keep one digit in your mind. Tell me the remaining numbers. Remaining digits. 9. So the number what is in his mind is either 0 or 9. Correct? The number what we thought is either 9 or 0. I gave the two answers. But I have to give one answer only. So now change the numbers. Digits. Now write any 4-digit number. Any 4-digit number. Number written. Reverse the digits. Then go to the subtraction. Subtract. Now keep one digit in your mind. Tell me the remaining digits. 6, 9. That means the digit what he is thinking, that is 3. The digit what in his mind is 3. Each not getting, the subtraction is wrong. Let me check. This number. Subtraction is wrong, question answer is wrong. They are going to continue one more, but get the correct answer. Any 4-digit number? Date of birth. Okay. So actually the mathematician, great mathematician Srinivas Ramanujan. Anyone know the date of birth of Srinivas Ramanujan? Date of birth of Srinivas Ramanujan. Yes, please. 20? 1889? No. Right. 22 December 1887. So in order to give the tribute to the great mathematician, let's start the date of birth. This is the date of birth of Ramanujan. Now just I'll make 4 by 4 square. I think 16 box I got. 4 by 4. Now these boxes I have to fill. And if you want to add on any side of the boxes, you will get the same answer. So let me fill the box now. Now let's start adding. 22 plus 10. 32. 32 plus 18. Answer. 15. 15. Just try to add the numbers. Let me add. So what is the total about? 137. Now if you add this one also, you get 137.
add like this also. In the 137, each add like this, diagonally. 137, each add this one, 137, each add this. 137, each add these numbers. 99, with 99, we can multiply with any number within a second. Now I am writing the answer. This is the answer. If you multiply this number, they will have the mobile, they can check whether this is wrong or right. All of you check the answer. Sadeem Sahab, Director CS Academy and the alumni of New Model High School, to present his wonderful thoughts with us. अभिभावक साहब, आप लोग ये समझेंगे कि मैं इस स्कूल का अलumni हूँ। इससे सबको पता चल गया होगा कि मैं यही स्कूल का तालिब इल्म था। और वो एक लोग बात तो अपनी 1971, 72, 73, 74. Mr. Khalil Rahman and me both were very close friends from childhood. We started studying from grade 2, if I remember correctly. So it's an honor for me today to be with you all, alhamdulillah, on this auspicious occasion where most of you have already passed 10th grade. Now you are looking forward to further up your career. So now you are in a big threshold. हम समझते हैं ना कि आज आप जो बच्चे पास हुए हैं यहाँ पे, वो चौराहे पे खड़े हैं। पास कर लेना एक अच्छी चीज है और एक स्टेप आपको जिम्मेदारी और बढ़ा देती है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए इसलिए कि उसके बाद अब उनको करियर अपना चूज करना होता है कि वो करेंगे क्या। वो याद रखें बच्चों, यहाँ तक तो आप पढ़कर आ गए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो सब्सटेंस आप में वो आना चाहिए, वो पैदा करें। Grades are not defining your success. Your success depends upon the quality of the education and wisdom-based knowledge you acquire. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ? आपको ग्रेड्स लेने से काफी नहीं है। आप 100 में से 100 ले सकते हैं सब्जेक्ट में, 95, 97 ले सकते हैं, लेकिन आप में उतनी काबिलियत होनी चाहिए जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है। ये दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है। आज आप जो पढ़ रहे हैं, 5 साल के बाद शायद वो पढ़ाई को काबिल कदर नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो रही है। When the world is changing rapidly, we need to embrace the changes. देखिए, कुरान में खुद अल्लाह कहता है कि वो बंदे, वो कौम का हम मदद नहीं करते जिसको खुद अपने आप हालत बदलने का शऊर ना हो। तो आप शऊर अपने आप में बढ़ाएं, अपने आप को बदलें, अडेप्टेबल बनाएं। दुनिया के जो चैलेंजेस है, फ्यूचर जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस है, उसको जहन में रखकर अपने आगे तालीम को जो है आप उस पर गामजन हो। अब आगे तालीम क्या होनी चाहिए आपको? बहुत सारे लोग काउंसलिंग किए होंगे, सोचे होंगे कि क्या क्या करना है। ये बात बहुत जहन में स्ट्रांगली बिठाएं कि आप इस वक्त जो काउंसलिंग सेशन के थ्रू जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अगर आप बनाएंगे तब आप ग्रेजुएशन करने के बाद वही फील्ड में कंटिन्यू करेंगे। एक फिगर आपको मैं बताता हूं कि इंडिया में इस वक्त 72% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको पता नहीं है कि अब आगे करना क्या चाहिए। अब आप बताइए कि इस तरह का सिचुएशन अगर आपको आएगा तो फायदा क्या होगा आपकी पढ़ाई का? जो आप 20-21 साल पढ़ते हैं उसके बाद आपको कोई हासिल नहीं है, फिर वहाँ ऐसे चौराहे पे ठहरते हैं आकर, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई ये तो दुनिया बहुत टफ है, हमको कुछ और पढ़ना चाहिए था। तो वो सिचुएशन को आप अभी से अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप समझ जाते हैं इस पॉइंट को तो इंशाल्लाह आपको आपका मुस्तकबिल अच्छा रहेगा। और एक चीज़ बताता चलूँ कि जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसमें आपको एजुकेशन प्लस स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिएटिविटी है, टीम स्पिरिट है,
और आप जिस तरह चैलेंजेस को, IQ को, AQ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो समझने की जरूरत है। खाली ये बुक्स पढ़ लेना NCERT के 6 ग्रेड टू 10 ग्रेड देन 12 ग्रेड, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है, जहन में रखें। आपको किस तरह से आगे पढ़ना होगा, आप क्रॉस रेफरेंस बुक्स पढ़ें और करेंट अफेयर से वाकिफ हों। आप सिविल सर्विसेज में, आप जैसे उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सिविल सर्विसेज जो है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अवेलेबल है आपके लिए, 10th में तो आप पास कर चुके हैं, अभी आपके पास है बच्चों जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, you can try and get the information, try to appear for that, at least it will give you added advantage. उसमें ये होगा कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आप बड़े कॉन्फिडेंटली अपने फ्यूचर में जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं, पेरेंट्स में भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल के जो असातिज़ा हैं, they basically open the door for the education, but the children are the one who has to acquire proper knowledge, and parents are the one who has to push the children very closely without giving them any hard punishment. बच्चों को अपने दोस्त बना के रखें, और जो बच्चे माँ बाप के दोस्त बन के रहते हैं, वो बच्चे इजीली जो है कम्युनिकेटिव होते हैं, इजीली जो है एक्सेप्टेबल होते हैं उनको चीज़ें, कंडीशन, ये बात जहन में रखें। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं यहाँ पे, वो जहन में रखें, बच्चों के साथ सख्ती नहीं करें, क्योंकि ये एज जो होती है, ये एज बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों का। ये एज में जो बच्चा जो है समझता है कि वो जो जानता है वो सब कुछ वही बेहतर जानता है, उनके पेरेंट्स और बड़े लोग नहीं जानते, क्योंकि वो एक अलग टाइप का एक माइंडसेट होता है। तो ये माइंडसेट को आप ध्यान में रखें, किस तरह से आप अपने आप को बच्चे के साथ एडजस्टेबल करेंगे और बच्चा कंफर्टेबल रहेगा आपके साथ, वो बच्चा तरक्की कर पाएगा। और साथ ही साथ ये कहूँ कि जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, जैसे हेल्थ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बच्चे होता है कि वो हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं और अननेसेसरी जो है वो डिविएट होते हैं बहुत सारी चीज़ों से लाइफ में। तो जितनी चीज़ों से वो डिविएट होते हैं वो आप ध्यान में रखें। एक तो मोबाइल होता है, सोशलाइजिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, शॉपिंग होती है, फंक्शन अटेंड करना होता है, ये तमाम चीज़ें ये एक लिमिट में रखें। जब तक ये तमाम चीज़ें बच्चों लिमिट में रहेंगी, आप एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे और आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ का, जो गोल आप बनाए होंगे, वो गोल को अचीव कर पाएंगे। तो वो गोल के लिए आप अभी से कोशिश करें, कल सुबह से, आज से आप अपना गोल बनाएं, गोल के ऊपर काम करें कि आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको ये बनना है, ठीक है ना। हम जब बचपने में पढ़ते थे तब ये हमें उतने तमाम चीज़ों से वाकिफियत नहीं थी। आज के दौर में जितना चीज़ें एक्सपोज हैं हर एक के लिए अवेलेबल हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे, लड़कियाँ बात कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। बेटा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें, हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए कुछ बताने के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन है आज, बहुत सीरियसली आप फोकस रहें चीज़ों के बारे में। तो यहाँ ये बताइए कि 9 और 10 बच्चे कौन है प्लीज़? 9 और 10, अच्छा 10 के बच्चे भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो उनके ये प्रोग्राम तो है बेसिकली 10 के बच्चों का, ठीक है, फैसिलिटेशन प्रोग्राम है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को, असातिज़ा को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, माशाल्लाह वो मेहनत किए आपके पीछे, आप लोग जो आज एक अच्छे नंबर से पास हुए हैं और आप ऐसे चौराहे पे ठहरे हैं बच्चों जहाँ पे आपका मुस्तकबिल आपको जो है संवारना है। तो जो टिप्स मैंने थोड़े से दिए हैं आपको, एक तो डिसिप्लिन में रहिए आप, दूसरा अपना जो गोल है उसको सेट कर लें, तीसरा आप अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, चौथा अपना एनवायरनमेंट सही रखें कभी भी, और पांचवा ये है कि आप सिर्फ अपने सिलेबस के बुक्स को पढ़ने के बजाय आप एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उसमें अपेयर हों, फिर आप करेंट अफेयर से वाकिफ हों और आप अपना टाइम बहुत डिसिप्लिन के साथ अच्छा मेंटेन करें। तो लाइफ में यही थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी जो है अच्छा शेपअप करती हैं, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि और भी मुकर्रिरीन है, तो मुख्तसरन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स बड़ी मेहनत से, बड़े जुस्तजू से पैसा खर्च कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। काश के बच्चे इस उम्र में ये समझ जाएं कि जो पेरेंट्स की जो मेहनतें हैं, जो हार्ड अर्न मनी है, तो किस तरह से उसको सही यूटिलाइज करके वो अच्छे इंसान, अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान बनकर अपने पेरेंट्स को खुश करें, ठीक है ना। बच्चों से यही कहूँगा और एक बार कि पेरेंट्स की इताअत करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। आपके पास अगर पेरेंट्स हैं तो आपके पास जन्नत है, घर में वालिद हैं तो आपके पास एक रहमत है, तो उसकी कदर करके चलें बच्चों।
Thank you so much, Jazakallah khair. Thanks for listening to me. Muslimin to speak a few words. खान साहब, करस्पॉन्डेंट न्यू मॉडल हाई स्कूल्स और स्टेज पे तशरीफ फरमा मेहमान असातिज़ा और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी 12-13 साल की मेहनत के बाद ये कामयाबी हासिल की। एक बात याद रखिए कि कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि इस कामयाबी के पीछे सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स का हाथ है, फिर उसके बाद आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स की मेहनत, मशक्क़त है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे। 2-3 बातें मैं हालत के हिसाब से रखूँगा और मैं समझता हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप ग्रेजुएट बने, आप पोस्ट ग्रेजुएट करें, आप तरक्की करें, आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाकर आप पढ़े। लेकिन 2-3 बातें आप याद रखिए कि ज़िंदगी की तरक्की की जो बुनियादें हैं वो बुनियादें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, और हमारी जो बुनियादें हैं, हमारी जो हम जिस तरफ देखते हैं, याद रखिए कि हमारी बुनियादें इस्लाम है। इस्लाम से अगर हट जाए तो फिर हमारी बुनियादों में कोई ताकत नहीं होती। 3 बातें याद रखिए कि सबसे पहली बात, जब भी कोई काम करे तो सोच लीजिए कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, आप अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। एक मुसलमान हर बुरा काम कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। एक मुसलमान होने के नाते हम तरक्की की कितनी भी मंजिलों पर पहुंच जाए, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ये चीज दिमाग में रखिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि इंसान जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप नमाज किस लिए पढ़ते हैं, आप रोजा किस लिए रखते हैं, आप ज़कात किस लिए देते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे को अल्लाह को खुश करना है। फिर मैं पूछूं कि अल्लाह को किस लिए आप खुश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे को जन्नत चाहिए। हम जो 50-60 साल मेहनत करते हैं, जन्नत के लिए मेहनत करते हैं, तो ये बात याद रखिए कि जन्नत अल्लाह ताला ने इतनी तमाम मेहनतों के बाद जन्नत के रखा है, तो माँ के खत्मों के नीचे अल्लाह ताला जन्नत रखा है। या माँ बाप की खिदमत कर लीजिए आपको इंशाअल्लाह ताला जन्नत मिल जाएगी। और एक आखिरी बात कि आज के दौर में जहां भी जा रहा हूं मैं बात कह रहा हूं, और इस बात से ये दिमाग में रख लीजिए कि बड़ी अहम बात है। इसको छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी आपकी तमाम जो जिंदगी आप आने वाली जिंदगी है वो आप बड़े मजबूर और परेशान होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज मिली है आज के दौर में, उसको हम सेल कहते हैं, और हमारी जिंदगी का ज्यादा वक्त सेल के पीछे जा रहा है। याद रखिए, सेल जहां अच्छा है वह उतना ही बुरा है, और सेल का ज्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है। ये हर अच्छी तरह से रख लीजिए। लॉकडाउन जब आया तो लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इससे कामयाबी मिलती है। ऐसा होगा, तमाम ऑनलाइन क्लासेस सारी दुनिया में फेल हो चुके हैं। तमाम दुनिया में ऑनलाइन जितने क्लासेस थे वो फेल हो चुके हैं। आज फिर दोबारा लोग स्कूल की तरफ, कॉलेजेस की तरफ, इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सेल कम से कम इस्तेमाल करें। सेल के साथ साथ याद रखिए कि सेल में अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो दिमाग में रखिए कि आपके माँ बाप नहीं देख रहे हैं, आपके दोस्त साहबान नहीं देख रहे हैं, आपके भाई नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला 24 घंटे आपके साथ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी शहरत से करीब हूं मैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास रखना चाहिए। और ये याद रखिए कि जिंदगी में हम ये जो पढ़ाई हासिल करें, इसके साथ अखलाक और कैरेक्टर भी हासिल करना चाहिए। जो आप खलील साहब के स्कूल में पढ़ाते होंगे, आपको मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल में अखलाक और दीनियात की तालीम होती होगी, लेकिन 90% स्कूल में अखलाक और दीनियात की तालीम नहीं होती। आज बच्चे पढ़ रहे हैं मगर अखलाक और कैरेक्टर में बिल्कुल पीछे रह रहे हैं। कोशिश ये करिए कि कोई अच्छे स्कूल से निकले हैं, आपके माँ बाप अच्छे हैं, कल आप कहीं बाहर जाए तो ये याद रखिए कि ये फलाना बच्चा है, ये अहमद है, ये खलील है, ये इमरान है, ये न्यू मॉडल हाई स्कूल से पढ़े हुआ बच्चा है, इसके माँ बाप पुराने 6 में रहते थे, इसके अखलाक और कैरेक्टर की हम मिसाल दे सकते हैं। ये आप दिमाग में रखिए। लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि आज के माहौल में बहुत से वाकयात हो रहे हैं, यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 2 गुजारिशें करूंगा, जितने लड़कियां बैठे हुए, आप कितनी भी तरक्की कर ले, आप याद रखिए कि अपना हिजाब नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन आप हिजाब छोड़ेंगे तो इस दिन आप इस्लाम से निकल जाएंगे और आपकी वो हैसियत व अहमियत नहीं रहेगी जो एक खातून, एक लड़की की होनी चाहिए। दूसरी बात आपसे भी गुजारिश है
कि पढ़िए, तरक्की करिए, लेकिन ये याद रखिए कि आपके जो भी मुस्तकबिल बनाना है वो आपके माँ बाप है। जब तक आप माँ बाप की खिदमत करेंगे आपकी तरक्की होगी। जिस दिन आप माँ बाप की खिदमत करना छोड़ देंगे उस दिन से आपकी तरक्की रुक जाएगी। ये अच्छी तरह से याद रखिए। और मैंने आपसे भी यही बात कहना है कि सिल का मजबूरी है, सिल का इस्तेमाल है। जब भी सिल का इस्तेमाल कर रहे हैं याद रखिए कल कोई ऐसा वाक़या ना हो कि आपके माँ बाप की इज्जत निकल जाए, आपके दोस्त अहबाब की इज्जत चले जाए, आपकी खानदान की इज्जत आपकी तरफ से चले जाए। ये दिमाग में रख के फैसला करिए। और फिर ये याद रखिए कि पढ़ने के तक जो बात है कि पढ़िए, इतना पढ़िए, लेकिन जब सुबह होती है तो ये बात याद रखिए हमारी सुबह किससे होना चाहिए? फजर की नमाज से और कुरान मजीद से होनी चाहिए। हम मुसलमान है, कम से कम रोजाना 3 आयत कुरान के मानों से पढ़ने की आदत डालिए। जिस दिन आप सुबह कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह उस दिन देखिए कि आपका कैसा गुजरता है। और जिस दिन आप कुरान छोड़ देंगे तो पूरा दिन आपका इखलास नौसत में निकलेगा। ये याद रखिए। मेरी यही बात थी। मैं खलील साहब को, न्यू मॉडल स्कूल के तमाम मैनेजमेंट को, टीचर्स को, असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये साल नहीं, आने वाले तमाम साल ऐसे रिजल्ट निकले और बच्चों की तरक्की में न्यू मॉडल स्कूल का अहम रोल रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। I would like to call Shri Sunnam Raj Mohan Garu sir, Corporator Puranapur, Hyderabad, to deliver a speech. सबसे मेरा आदाब, स्टेज पर तशरीफ करना पत्थरगट्टी का ऑर्डर महमूद भाई, खलीलुल रहमान साहब, जो न्यू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने स्कूल की बहुत अच्छी तालीम हासिल कराई बच्चों के लिए। बहुत अच्छा एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में खलीलुर रहमान का साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो 100 बच्चों में 100 बच्चे पास हुए एसएससी। अब एसएससी पास हो गए, कुछ नहीं होना, आगे बहुत पढ़ना है आप लोगों को। इंटरमीडिएट है, इंजीनियरिंग है, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर, हर चीज बहुत बड़ा लंबा सफर है अभी। तो आप लोग बहुत मेहनत करना है। पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग, अभी महमूद भाई बोले महिलाओं का, लेडीज गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो जाए। खाली बच्चों को नहीं पढ़ाना, बच्चियों को भी पढ़ाना, खासकर बच्चियों को तो और पढ़ाना, क्योंकि आज के दिन तालीम इतना जरूरी है। आप जीने के वास्ते जैसा रोटी जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, घर जरूरत है, आज पढ़ाई भी इतना जरूरी है जीने के वास्ते। तो मेरे पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, तालीम हासिल कराइए। और स्कूल भी बहुत अच्छा स्कूल है, अब तक तालीम अच्छा हासिल करें आप लोग एसएससी तक, ताकि स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में, हर प्रोग्राम में उसमें तालीम हासिल करें आप लोग। आगे भी जाकर अच्छा पढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करना, इस तेलंगाना का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। शुक्रिया। खुदा। Thank you sir for sharing your thoughts on girls education. Now it's time to give a courteous call to Janab Mustaq Hussain Saab, Chairman Parivar Group of Hotels, to say a few words. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ा ही बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ासतौर से स्कूल के लिए आज बहुत बड़ा मसरत का दिन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मॉडल स्कूल का बेहतरीन रिजल्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस बच्चों को भी अवार्ड से नवाजा जा रहा है और हमारे जो आज डिग्निटीज आए हैं इस स्कूल की मुबारकबाद देने के लिए खलील साहब के। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल आज खलील साहब लेकर चल रहे हैं ओल्ड सिटी का, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन स्कूल है जिसमें एजुकेशन एक नंबर 1 पर आज इनका स्कूल चल रहा है। और ख़ास तौर से इन लोग, इनका पूरा फैमिली यहाँ पर मेहनत करके बच्चों को
जो फील्ड में रिजल्ट ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खलील साहब को बहुत दिल की गहराइयों से उनकी फैमिली को और पूरे उनको मुबारकबाद देता हूं, और ख़ास तौर से जो बच्चे पास हुए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और मेरी ख़ास तौर से मेरी बेटियां, मेरे बहनें जो आज बच्चियां पास हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूं। बेटे मगर आज इसके बाद आपका ये 10 का तो रिजल्ट आ गया है, इसके बाद जब आप कॉलेज में जा रहे हैं तो अब आपकी ये सेकंड स्टेप आपका आता है, इसमें बहुत एहतियात से आप लोग लेके चलना है और अपना हैदराबाद का, तेलंगाना का नाम भी रोशन करना है। खास तौर से मैं बच्चों को कह रहा हूँ और उनके पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि ये इसके बाद जो कॉलेज का पीरियड आता है बच्चों को खास आप लोग तवज्जो रखकर पढ़ाइए और अच्छे कॉलेजों में इनको एडमिशन दिलाइए और इनका मुस्तकबिल अच्छा करिए। और बच्चे भी जो आजकल पढ़ के पास हो रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करें और पढ़ें, कामयाबी की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से यही दुआ है कि आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छा करें, अच्छा पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर आए और सबका तमाम स्कूल का तो हो गया, अब इसके बाद कॉलेज का, अपने ख़ानदान का सबका नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for your interest. Next, I would like to call Janab Hafiz Muhammad Haji Noori Sahab, DEO Arabic Department. Bismillahirrahmanirrahim. Respected chief guest of the today's function, Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, MLA Charminar, Hyderabad. Respected Sri Suman Raj Mohan Garu, Corporator Puranapur, Hyderabad. Respected Janab Sayyid Sohail Khadri Sahab, Corporator Pathargatti, Hyderabad. Respected Janab Muhammad Numan Sahab, Deputy Registrar with Osmania University. Respected Rotarian MBR Mohan Garu, past President Rotary Club of Hyderabad Central. Respected Janab Mushtaq Hussain Sahab, Chairman Parivar Group of Hotels. Respected Janab M.A. Khadir Sahab, Motivational Speaker, Director CS Academy and alumni of our school. Respected Janab Sayyid Fahim Sahab, respected Janab Khalid bin Mazi Sahab, respected Janab Bashir Ahmad Farooqi Sahab, distinguished guests, dear parents, teachers and my dear children. Good morning everyone. Today is the special occasion of meritorious award function. I welcome all the dignitaries on the dais and as well as off the dais. I am extremely honored to roll out the red carpet for you all in this prestigious moment. On behalf of the whole unit of this institution, I heartily welcome all of you on this award ceremony. I would see a unique and a talented mix of the students and the parents who made this happen. The glorious results of the new model school for the academic year 23. On the top, I would like to give a hearty welcome to Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, MLA Charminar. It is not customary welcome, but I welcome you from the bottom of my heart as you are our precious guest whose presence at our function is very delightful. As well, all know Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab is very popular and famous personality of the city, as well as much familiar in our school. To praise this personalities like Suraj ko diya dikhana hai. On behalf of the whole unit of the new model high school, I would like to take this opportunity to thank you for the presence, as we all know how busy you are. But in spite of your busy schedule, you are with us. I welcome you, sir, and thank you. I also welcome all the awardees of the today's ceremony, our esteemed parents
and all the invitees of the today's event who are here from far and near. As you all know, today we gathered here to award our talented young and the future citizen of our nation who excel out in the SSC examination with the distinct results. Alhamdulillah, again we proved a glorious and the excellent result of the SSC batch of 23 and remain on the good position in the Bahadurpura Mandal. Our topper Shima Fatima, who scored 9.8 GPA, is a remarkable achievement with a 10 out of 10 in 5 out of 6 subjects. Our student achieved 10 out of 10 in the various subjects like 10 students have scored 10 out of 10 in English. 10 students scored 10 out of 10 marks in English. And 6 students, now I welcome Janab Ziauddin Nayyar Sahab, President, All India Majlis Tanzir Millat. Sir, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Sir, please come, sir. आगे. And 6 students scored 10 out of 10 in Hindi. 5 students scored 10 out of 10 in social. 2 students scored 10 out of 10 in Urdu. 2 students scored 10 out of 10 Urdu. 3 students scored 10 out of 10 in mathematics. 2 students scored 10 out of 10 in Telugu. 2 students scored 10 out of 10 in science. All the students from the BNG section maintain 100% result of the merit section. I congratulate all our students for achieving the good results and wish them a bright future. The hard efforts of the students and the dedication of the teacher and of course the cooperation of the parents make this happen. The excellent result I would like to give a special praise and the congratulations to all the staff members who put their good efforts behind these SSC students to bring out the best from them. So I request all the students to stand and just clap for your staff. All the students, माशाल्लाह आपका स्टाफ बहुत ही अच्छा है. एक जोरदार तालियां चाहिए स्टाफ के लिए आपके. They have done excellent work for you. Thank you very much, Sirang. Their efforts has contributed to raising the all-over standard of the school and in building up the future of the student. Alhamdulillah, Allah has chosen us in the cause of the education and we work with the intention to spread education by bringing out the best from the students. On behalf of the whole unit of the new model school, I take this opportunity to wish my students to have the great years ahead wherever you are and whatever is aspect of the life and whichever part of the world you are. I wish my students to be the better citizen of the country, work sincerely and be honest in all the matters. Serve the nation in the best position way. Don't behind the money. Allah will reward you for your sincerity, good deeds and for the good intention. Many people want to achieve success in the life, but it's easier said than done. The simple fact is that you need to be in the different from others and be successful in the life. Every person is an ordinary person, but his or her efforts and the sincerity makes him or her the extraordinary person. We thank Almighty Allah for giving us the opportunity to contribute in the cause of the education. Inshallah, we will extend our indoor beyond out our life and reach many generations to come. May Allah help us to do good deeds and accept our deeds which are doing in the cause of the education. Ameen. May Allah be with us and we go on. Thank you very much, sir. Thank you. Mr. M.R. Mohan, sir, Rotarian And the parents. First, I would like to thank
congratulate the students who have done exceedingly well. I think one girl scored even 10 out of 10 in 5 subjects. Right? So, as many speakers said, this is just the first step. There are a lot of things to do before you come up in life. Right? It's not an easy thing. Now, I know the guy, education is the main thing which will bring your family up. My grandfather was a very poor man. He did his MA in 3 subjects and he has become a Padma Bhushan. And because of his education, we are all become rich and we all become highly knowledgeable. So it's very important that if you want to bring up your next generation, important that you all study well. Those boys and girls who are taught must keep their life focused. This is the beginning, this is the first step. And I think we will do much better if we are focused. Nowadays, our Google, who is the guru for all of you, was my father and my uncle. They said, you do engineering, so we do engineering. Someone said, no, you are good at medicine, we do medicine. But it's not like that. Now your Google really shows you so many opportunities in life. So and every opportunity to do well, it's going to be a great success. I know one girl, Saida in Sunshine College, she has become a specialist in perfume and she is working in UK. And she is one of the richest girls in UK now. I know one girl, she did nutrition. She was a National Institute of Nutrition. Now she is in US. She is one of the top specialists in nutrition. So there are many fields now which are open to all of you. And you must choose the right field. In this case, I would like to just tell the parents that they should understand their children. They should know what their children are good at and what subjects can they take to make them do a good job. So I really request this school, the Khalil and others, to also have a career counseling not only for students but for the parents to tell them what exactly they should study and what is it that they can do in future. It's very important because nowadays it's no longer just engineering and medicine or IAS and IPS. It can become very great. You know the musician A.R. Rahman. He didn't do engineering, he didn't do past tense. Okay. We are a cricketer, Virat, bowler. I think only that he studied 10th class, if I'm right. Like that there are so many examples. So it's for the parents first to know, understand their children, and parents should find out what is good for their children and encourage them to do well in their field. A few words, I would like to thank Khalil Bhai to give me an opportunity to address you all and congratulate all of you once again. Thank you. From the chief guest of today's function, Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, member of Telangana Legislative Assembly, Charminar, Hyderabad. Give a huge round of applause to welcome him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आले जनाब मोहतरम मकाम मेरे बरादरम खलीलुर रहमान साहब, सेक्रेटरी न्यू मॉडल हाई स्कूल, मिस्टर सोहेब साहब डायरेक्टर न्यू मॉडल हाई स्कूल, जनाब मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर साहब, श्री राजमोहन साहब कारपोरेटर पुराना पुल डिवीजन, मेरे बरादरम जनाब सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी, जनाब मोहम्मद नुमान साहब, जनाब मुश्ताक हुसैन साहब, जनाब M.A. खदीर साहब, मेरे बरादरम जनाब खालिद बिन माजी साहब, जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी साहब। माशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है, न्यू मॉडल हाई स्कूल
काफ़ी अरसे से जो दूध बॉडी में चलाया जा रहा है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। और आज अल्लाह के कर्म फजल से जो प्रोग्राम रखा गया SSC मेमोरियल अवार्ड का, ये बड़ी हमारे खालिदुर रहमान साहब की काविशों का नतीजा है। रात और दिन आप स्कूल के पीछे मेहनत करके आप लोगों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं माशाअल्लाह, जिसकी वजह से इस स्कूल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं मेरे प्यारी बहनें और भाई हैं कि आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़कर अच्छा रिजल्ट निकाले। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। जब तक इंसान के अंदर तालीम नहीं आती, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा नहीं होती। खुसूसकर आज के ज़माने के अंदर ज़माना तरक्की करते जा रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बहनों और भाइयों के अंदर एक जो तालीमी रुझान पैदा हो चुका है, इसके पीछे उनकी पेरेंट्स की भी बड़ी मेहनत होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि स्कूल को भेजकर बच्चा तालीम हासिल कर लेगा, ये गलत फहमी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्कूल के माहौल का बच्चे की ज़िंदगी बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर 30% असर होता है, और घर का जो माहौल होता है, माँ बाप की जो तरबियत होती है, उसका 70% असर होता है। तो आज अल्लाह के फजल करम से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी अलामत है। मैं चूँकि आपके हल्के के एक MLA की हैसियत से आपके दरमियान में हूँ, इससे खबर भी मैं आपके इस स्कूल के बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत की। माशाअल्लाह, मैं जब कभी भी स्कूल में जाता हूँ तो मुझे काफ़ी मसरत होती है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि कमर्शियल बना चुके हैं, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारे खलीलुर रहमान साहब माशाअल्लाह बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देकर आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं। और मैं और स्कूल के जो भी दूसरे मैनेजमेंट हैं, उन तमाम को मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। Achievement of the students. First, let's start from the topper of our school, the topper of 2022nd and 23rd, Shima Fatima, with 9.8 GPA. Come along with your parents, Shima Fatima, 9.4 GPA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख पे तशरीफ फरमा। न्यू मॉडल स्कूल के रूए रवाना जनाब प्रिंसिपल जनाब खलील साहब और मेरे साथी कारपोरेटर जनाब सुन्नम राजमोहन साहब, मुश्ताक साहब, अभी जो तकरीर किए हैं शफीक साहब, जो जामे तकरीर किए हैं आपके लिए, मैं सबसे पहले स्कूल के इंतज़ामिया को और वहाँ के असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी जस्तजू थी, जो एक अच्छा रिजल्ट आया है। और आज जो 100 बच्चे न्यू मॉडल स्कूल के 10th पास हुए हैं, हाई स्कूल पास किए हैं, अब वो कॉलेज में दाखिला लेंगे।
तो उनको इनामात से नवाजा जा रहा है। ये इसलिए इनामात से नवाजा जा रहा है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर, उनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खासतौर से बेटियों से गुजारिश करूंगा, ऐसी बात नहीं कि बच्चों से भी मुखातिब हूं, कि हिंदुस्तान के जो आज हालात है, अगर अब हमको अपनाए वतन के साथ अगर शाना बाशाना चलना है तो तालीमी जेवर से आरास्ता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है हमको। अगर एक बच्ची का तालीम याफ्ता होना, एक खातून का तालीम याफ्ता होना, एक अच्छे अपने प्रोफेशनल में और या इंजीनियरिंग में या कोई भी शोबे में अगर एक बच्ची कामयाब होती है, तालीम याफ्ता होती है, तो पूरे खानदान को संवारती है बच्ची, एक खानदान की परवरिश करती है यही बच्ची। तो मैं बच्चियों से गुजारिश कर रहा हूं मैं कि देखो बच्चियों, आज के दौर में घर से अगर हम निकलते हैं तो हमारे को फोकस ये रहना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को जाएंगे और फिर कॉलेज से घर को आएंगे। बेराह रवि में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना, एक एक लम्हा, एक एक दिन बहुत कीमती है। आप एक पास नहीं हो रही, अगर एक बच्ची अगर पास होती है, एक बच्ची मेरिट बेसिस पे आती है, तो वो अपने स्कूल का ही नहीं, अपने महल्ले का नहीं, अपने खानदान का भी नाम रोशन करती है, अपने तेलंगाना स्टेट का भी नाम रोशन करती है। ऐसी कई मिसालें हैं जो बच्चियां मेहनत करके अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जो गरीबी से उठती है बच्ची, आज हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है, गोल्ड मेडल हासिल करती है। इसमें आपने भी ये खूबियां, ये सलाहियत अल्लाह ताला दिया है। मैं तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ, बच्चों से भी मुखातिब हूँ कि एक अज़्म के साथ आप यहाँ से निकलना है और हमारा तालीमी सफर को जारी रखना है। याद रखिए, दौलत, शोहरत, हर चीज आती और जाती रहती है, मगर एक तालीम ऐसी चीज है जो हमारे पास हमेशा साथ रहने वाली चीज है। यहाँ खवातीन की, बच्चियों की तादाद ज्यादा है। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
to you people. Fahimuddin Sahab. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका मिला आप जैसे बात करने का। First of all, I would like to say a big thank you to Khalil Bhai because Khalil Bhai has invited me. Thank you, Khalil Bhai. I would like to say a big thank you to all the respected organizers because to organize this event is not a small thing. So big heartfelt thank you to Khalil Bhai and his team. Now look, I just want to speak something which should be fruitful for students because my intention is quite clear. The time what you have given, I believe that you should get some benefit out of my speech. Okay? Now, as you have finished your 10th standard, so I would like to congratulate you. That's great you have done. But look students, do you think that you have done something extraordinary? Absolutely not. Okay? But today onwards, what you've got to do, if you have book and pen, please make note of these points. Because these points, inshallah ta'ala, will be beneficial. Not today, this will be forever. Okay? The first and foremost thing, look, you passed your 10th and you don't know what to do. Maybe you have a dream, you want to become a doctor, maybe engineer, or pilot, or businesswoman, or businessman, or chartered accountant, or company secretary, or you want to write UPSC exam and you want to become an IAS, IPS, or IFS, or whatever streams you have. But please understand, first and foremost thing, in life if you want to do something, you've got to have clarity in your goals. Because it's not that your cousin become a doctor and you say to your kid that please become a doctor. Don't do that. Life is all about your clarity. Life is all about your specific things. Last time, Dr. Khadir sir invited me to the Shine group. I just met a lot of close to 5,000-6,000 students. Most of them, they're doing BPC. And I asked them, what do you want to become? What do you want to become? They said, I want to become doctor. Then I said, which doctor do you want to become? Because being a doctor, that's a general goal. Most of us, what we do, my cousin became a doctor, I'll become a doctor. They don't know what it's all about. So you've got to be very specific. I told the girl, look, you should be very specific, saying to me, I want to become a cardiologist. I want to become a nephrologist. That is a specific goal. So students, please have that in your mind. Whenever you are choosing your career, have that thing in your mind. Could be anything. I'm just giving an example of doctor. It could be engineer, it could be pilot, anything. No copying. मेरी बहन डॉक्टर बनी और अमेरिका चलेगी, काफी पैसा कमा रही. No. It's your book. Don't copy someone else's pages. Hope you're understanding, girls, boys. Should I continue? आवाज ही नहीं आ रही. Should I? MashaAllah. Okay. The first thing I was talking about clarity. Second thing, anything if you want, you should have discipline in your life. You should have discipline. You can't just say that, ठीक है सर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, आप जो कहे मैं आपकी बात मानूंगी. No. Clarity, discipline, followed by consistency. आप देखिए, आपका एग्जाम्पल, आपके माँ का एग्जाम्पल ले लीजिए. आप जब बचपने से लेकर आपकी शादी होने तक आपको हर दिन, हर वक्त आपको टाइम पे नाश्ता मिलता है. वो है कंसिस्टेंसी. सलाम है उनको. हैट्स ऑफ टू मदर्स. हैव दैट इन योर माइंड. आप कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते. आप एग्जाम्पल लीजिए कंसिस्टेंसी का मिसाल. मैं माँ का नाम इसलिए लिया, उनका मुकाम बहुत बड़ा है. अब आप देखिए कंसिस्टेंसी. अपना इस्लाम 5 टाइम नमाज, इससे ज्यादा क्या हो सकता बोलिए आप. आप सोचिए जो बंदा इस्लाम के फॉलो कर रहा है उसको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं. जब आप दीन से दुनिया को हासिल करते हो तो काफी बुलंदी पे जाते हो. Hope you understand. Okay. Now I was talking about clarity, discipline, consistency. ये 3 चीजें आप अपने जहन में रखिए. फाइन. नो आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं. देखिए सर, आप कह दिए, हम आपकी बात सुन लिए, क्लैरिटी है हमारे पास, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है. बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिंदगी में पैशन रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए.
मैं यहाँ पे बैठा था, आप सच मानिए झूठ मानिए, मैं इज्जत हर एक की करता हूँ। मुमताज खान साहब आए तो मुझे लगा खान साहब हैं, एमएलए हैं, मैं दिल इज्जत करता हूँ, बट मुझे सिर्फ ये मकसद था कि मैं अपना टाइम ये होनहार स्टूडेंट्स को कर दूं। मेरा मकसद वो है, मेरा मकसद कौम की खिदमत। आप समझ रहे होंगे सर आप डायलॉग मार रहे, नो, मैं जो काम करता हूं खौफ खुदा रख के काम करता हूं, अल्लाह वास्ते कि भाई हाँ कुछ ना कुछ अपनी कौम को फायदा होना चाहिए। तो आप ये जहन में बिठाइए, आज से हमको ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं एमएलए आए थे, मैं अपनी जगह पे बैठा था, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे उनसे क्या मिला, मुझे ये चाहिए कि मैं क्या दिया अपनी कौम को, वो रहना चाहिए आपको। आज से यह हद करिए आप। अक्सर हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो भाई व्हाट कैन इट फॉर मी, व्हाट आई विल गेट, अगर मैं वो बंदे से मिलता हूं तो मुझे क्या मिलता है। नो, हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू गॉट टू बी ए गिवर। आपको देने वाले बनना है, आपको कंट्रीब्यूटर बनना है। मान लो मेरी बात, अगर आप जब कंट्रीब्यूटर बनते हो, जब आप देने वाले बनते हो, तो आपके पीछे लाइन लग जाएगी। तो आपको ये जहन में बिठाना है कि आज से ये अहद करना है कि हमको देने वाले बनना है। आप सोचिए खलील साहब, अगर ये स्कूल, उनके बाबा भी मेरे ख्याल से वो फाउंडर हैं, सोचिए कितने हजारों स्टूडेंट्स को वो ये मौका दे चुके हैं। समझिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पसंद करता है जो देने वाला रहता है। आप अपने फैमिली में देख लीजिए, अगर आपके भाई हो या बहन हो, आप हमेशा उनसे लेते रहते तो एक वक्त भाई आपका गुस्से में आ जाएगा, यार ये मेरा भाई हमेशा लेते रहता ना देता। तो याद रखिए, आज से आप गिवर बनिए, कंट्रीब्यूटर बनिए। ये जहन में रखाइए कि हम किसी की मदद करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमको उनसे क्या मिला। बाजुत रखिए मेरे भाई बहन, आज से मैं आपको सच मानिए झूठ मानिए। खलील साहब जब बोले फहीम आपको यहां आना है, आप, मुझे बेगमपेट में मीटिंग थी, मैं वो कैंसिल किया, पोस्टपोन किया, क्योंकि मुझे पता है दुआ, ये दुनिया में सिर्फ दुआ और दवा चलती है। मैं आपको बताता हूं, जब आपके पास दुनिया दुआ है, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। आप सच मानिए झूठ मानिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। देखिए यहां भी कैसा नाइंसाफी हो रही है, पूरे मेरे बहने थालियां मार रहे हैं, भाई साहब तो सब बैठे हुए, हंसने के लिए बोला था भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जिंदगी का मकसद ये रखिए आपको दुआ लेना है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गदीन का सदका है। आप सच मानिए या झूठ मानिए, मैं अपना 1 रुपया खर्च नहीं किया, बट 20 कंट्रीज ट्रैवल किया। मैं मेरा लंच लंदन में किया तो न्यूयॉर्क में डिनर किया, और मेरे सिर्फ माँ बाप की दुआ की वजह से। तो माँ बाप की वो अहमियत है। हम क्या करते हैं, चलता है एटीट्यूड करते हैं माँ बाप को। आप देखिए, मान लीजिए मैं आधा घंटा स्पीच देने के बाद अगर मुझे पानी की प्यास लगती है और कोई बहन को बोला बहन पानी पिलाइए, आप भाग के जाके पानी लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा आधा घंटा हमको कुछ इल्म दिया है, इसको पानी पिलाना। क्योंकि हो सकता आप भाई के लिए लाए हो सकता आपके उस्ताद के लिए लाए हो सकता है यार बंदा पानी की प्यास लग रही है। जब आधा घंटा एक बंदा जो स्ट्रेंजर है वो पानी पूछता है तो आप लाते हो। आप सोचिए, आपके माँ बाप आपको इस दुनिया में लाए हैं, उनके लिए क्या नहीं करना है आपको। ये सोचिए, आप आज से अहद करिए कि आज से हमको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। लास्ट टाइम मैं निखत जरीन से मिला, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। आप सोचिए, मैं उनके बाबा से मिला तो उनके बाबा की इतनी इज्जत, उनको इतनी शान महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप को अच्छा दिखता है। याद रखिए, बच्चों से माँ बाप की इज्जत है। हम ये सोचते हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मेरी बच्ची अच्छी पढ़ लो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लो, पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रांटेड। आजकल क्या हो गया है, चलता है एटीट्यूड, कोई दूसरा बोल दिया कर देंगे, माँ बाप बोलेंगे तो नहीं भाई। आज से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा जो तजुर्बा है वो आपको दे रहा हूं। मैं आपको बताया क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये ध्यान में रखिए। और मैं एक बात ये बता रहा था, ग्रैटिट्यूड, यानी कि जब आपके पास ग्रैटिट्यूड रहता है, एहसान मंदी रहती है, तो अल्लाह ताला उसको बहुत बुलंदियों पे लेके जाता है। तो आज से आपको ये करना है, यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आपके पास ग्रैटिट्यूड रहता है, कोई चीज की वो नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सच मानिए झूठ मानिए, इसी तरह
Okay, since we don't have that much time, I just want to conclude. इंशाल्लाह ताला जब मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा. But आज से I wish you all the best. इंशाल्लाह ताला what best I can do I'll do. But this I just want to say big thank you. Thank you Khalil bhai. Thank you so much. Jazakallah khairan. For inviting me on this wonderful occasion, and I want to also congratulate all the students who have passed out with a great result. And lastly, I want to thank my parents and teachers who always supported every situation of my life. Thank you. उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार काम किया था. वहाँ से मैंने रिटायर हुआ. आई यूज्ड टू मॉनिटर 750 कॉलेज, ओनली 750 कॉलेज आई यूज्ड टू मॉनिटर. बाद में मैं जो है 15 में रिटायर हुआ. बाद में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मैं इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी का काम कर रहा हूँ. मैं ये इंस्पेक्शन बेस्ड असाइनमेंट है. फिर वासवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ. और हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन में जहाँ आपके इस्लामिक टीचर आते हैं ना, अनवारुल्लाह साहब आते हैं ना आपके पास से, वो हमारे पास से आते हैं. मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ. मैं मेरा 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कि हर साल हर एक 10 साल के अंदर लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, डिमांड चेंज होते रहती है. ये बात ध्यान में रखिए आप. ये बात ध्यान में रखिए कि हमेशा एक दौर था जब बीकॉम का बहुत बड़ा क्रेज था लोगों को कि बीकॉम में बैंकों में रिक्रूटमेंट हुआ करते थे तो बीकॉम के स्टूडेंट्स ही बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होते थे. एक दौर ऐसा भी आया कि बीए कोर्सेज का भी डिमांड था कि साइंसेज के टीचर्स का बहुत बड़ा डिमांड हुआ करता था, पर्टिकुलरली एफपीसी बाईपीसी के लिए. मगर आजकल ये बताओ मैं आपको कि मैं जब रिटायर होने से पहले एक कॉलेज को मैंने अप्रूवल के मंजूरी लिख के ले गया. तो ये जो है अपने टोकरपल्ली और पीएचएल के बीच में मदीना गुला बोल के कॉलेज था. और जब कॉलेज में गया तो वो कॉलेज देवर ऑफरिंग ओनली बीए कोर्स. जब हम लोगों ने इंटर हुआ तो ऐसी मैसिव बिल्डिंग है, कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है. ये साहब के लिए माशाल्लाह के साथ ही यहाँ पे हमारे फंक्शन के लिए आ गए हैं. खदीर साहब से आई रिक्वेस्ट जस्ट टू बी हियर. वी आर गोइंग टू बी ऑनर द गवर्नमेंट स्कूल.
खास तौर पर ओल्ड सिटी के बच्चे जो आज इतना बेहतरीन अवार्ड जो स्कोर्स गेन किए हैं 10th में, उन लोगों को यहाँ पर इकबाल रहमान मेमोरियल सोसाइटी के जानिब से जो अवार्ड मिले जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वो स्कूल्स को इकबाल रहमान मेमोरियल सोसाइटी के जानिब से जो अवार्ड मिले जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। वो स्टूडेंट जो अपने माँ बाप का नाम रोशन किए हैं, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन किए, आप अपने स्कूल का नाम रोशन किए, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किए, आप अपने लेक्चरर्स टीचर्स का नाम रोशन किए। मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो आप अपना स्कोर इस तरीके से अच्छे रिजल्ट लेके आके 8.5, 9, 9.5, 10 भी बच्चे स्कोर किए होंगे। मेरे तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहा हूं मैं वो बच्चों के लिए जो बच्चे 9.9 लाए या 9.5 लाए या 9.0 भी लेके आए। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वो बच्चों को फ्री एडमिशन दे रहा है। गैलेक्सी जूनियर कॉलेज में मैं ये एक अनाउंस करने जा रहा हूँ, वो बच्चे जो 9 के ऊपर मार्क्स लेके आए, मैं उन लोगों को BPC, MPC, CEC, HEC में आप लोगों को एडमिशन 9 के ऊपर स्कोर लेके आए। जो 9 के बाद स्कोर लेके आए उनको इंशाअल्लाह ताला ये इकबाल रहमान मेमोरियल सोसाइटी के जानिब से उन लोगों को इंशाअल्लाह ताला 50% डिस्काउंट भी करूंगा मैं। ये आप लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि आज ये बच्चे, मासूम बच्चे, ये देश का भविष्य है, ये देश का, मुल्क का नाम रोशन करने वाले हैं। इन लोगों को आगे बढ़ाना हम लोगों का फर्ज आइन है। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे स्किल सीखे और बाद ऐसे वोकेशनल कोर्सेज है, बाद बच्चे क्या करना, तकरीबन बॉयज से कहता हूँ उन लोग CEC में जाते हैं। होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आफ्टर 10th के बाद ये कोर्सेस है, ये कोर्सेस करिए। लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, गर्ल्स के लिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स है, ये हेल्थ के रिलेटेड क्या करना कोर्सेस है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ये कोर्सेस आप लोगों के लिए बेनिफिटेबल है। आप यहाँ पे शालीबंडा एक्सपोर्ट पे गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आपको नंबर ऑफ दी कोर्सेस मिलेंगे। आप ओनली फॉर CEC, MPC, BPC ये कोर्सेस मालूम है जो इक्वल टू इंटरमीडिएट लॉट ऑफ कोर्सेस है जो आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोगों के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। एक मरतबा जरूर गैलेक्सी कॉलेज में आकर अपना क्या करना, काउंसलिंग मोबिलाइजिंग करिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी इक्वल टू इंटरमीडिएट कोर्सेस है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के, जो आप CA बनना चाह रहे हैं, आपको आज मुल्क का तकाजा है कि हमारे पास चार्टेड अकाउंट ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए CA के एक है, चार्टेड अकाउंट कोर्सेस है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से, और एक क्या मेरा कंप्यूटर ग्राफिक एंड एनिमेशन से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स है। ये लॉट ऑफ कोर्सेस इक्वल टू इंटरमीडिएट है। मेरे को इतना वक्त देने का टाइम दिया है, मैं इसका जज़ाकल्लाह करता हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को लेके चलो। सबक पर तू सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझके दुनिया की इमामत का। खुदा हाफिज़। Thank you very much, Janab Usam Shah, Director TV 99, Galaxy Junior and Degree College, Vocational College. Now just the time to felicitate our teachers. Those who have done excellent work. Clap for your teachers. माशाल्लाह boys, तालियां नहीं हो रही, 10th क्लास के बच्चे बैठे हुए खाली। Now we are going to be start with the English. The student score 10 out of 10. 10 students score 10 out of 10 in the English language. Clap for the English teacher. And I request Ziauddin Nayyar Sahab, President of the function, to felicitate our teacher. Sir.
warahmatullahi wabarakatuh. न्यू मॉडल हाई स्कूल, तो आप लोग एक मॉडल है ओल्ड सिटी के, आप लोग ओल्ड सिटी के मॉडल रह के ओल्ड सिटी में एक नया इनकलाब लेके आएंगे। और आप लोग जो रिजल्ट लेके आए, काबिले तारीफ है खलीलुर रहमान साहब, नॉट ओनली फॉर आपके स्कूल को बच्चों को अवार्ड नहीं दिए बल्कि नहीं, और दूसरे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को भी अवार्ड दिए हैं। और खलीलुर रहमान साहब न्यू मॉडल हाई स्कूल्स में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट करते हैं, बच्चों के लिए कई टैलेंट प्रोग्राम्स करते हैं, कई एक्टिविटीज करते हैं न्यू मॉडल हाई स्कूल में। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं अपने और ज्यादा मजीद और न्यू मॉडल हाई स्कूल के अतराफ और अकनाफ के जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, अपने आप को एक फख्र महसूस करिए न्यू मॉडल हाई स्कूल में बच्चों को शरीक कराकर, क्योंकि न्यू मॉडल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल ओल्ड सिटी का है जो आपको एक मॉडल बना के आप लोगों को पेश कर रहा है। और सिर्फ नॉट ओनली फॉर दुनिया की तालीम, साथ साथ दीन की तालीम है। वहां पर कई मेडिकल कैंप होते हैं, कई आप लोगों के लिए इवेंट्स होते हैं। कोई स्कूल ओल्ड सिटी के स्कूल्स में इतने इवेंट्स नहीं होते जितने इवेंट्स में मैं वहां पे पार्टिसिपेटेड और अटेंड करता हूं। तो आप लोग काबिले तारीफ है, ताकि ये इवेंट्स को देख के आप भी एक वेल ऑर्गेनाइज करने वाले बच्चे बच्चियां बन जाए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा न्यू मॉडल हाई स्कूल में शरीक कराकर अपनी इंडिया का, अपने नाम का, अपने मोहल्ले का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कराइए न्यू मॉडल हाई स्कूल में शरीक करके, क्योंकि वहां पे हर स्पोर्ट्स होते हैं, खुले कुतुब शाह ग्राउंड में होते हैं। आप लोगों की टीम भी क्रिकेट में सेमीफाइनल्स में तक बच्चे पहुंचे हैं। उसका टाइम 99 की तरफ से क्रिकेट का एक ऑर्गेनाइज किया गया था, जो न्यू मॉडल हाई स्कूल के बच्चे बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं वहां पे। मैं ये चाहूंगा उन लोगों को नेशनल कोचिंग की तरफ से मैं उनको स्पॉन्सर करूंगा, क्योंकि नेशनल कोचिंग के लिए आपको हरियाणा और पंजाब में जाना है। जो बच्चे अच्छे क्रिकेट कर रहे हैं, मैं हरियाणा पंजाब को भिजाने के लिए गैलेक्सी और 99 टीवी स्पॉन्सर कर रहा है। और खासतौर पे बच्चों से भी कहूंगा कि आप लोग, चाहे मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई बहने हैं, चाहे मुस्लिम भाई बहने हैं, हम सब एक है। हमको सब एक रह के नेशनल एंथम जिस तरीके से पढ़ते हैं हमारे गॉड इंडिया के फादर गांधी जी है, इसी तरीके से हमारे स्कूल के टीम लीडर खलीलुर रहमान साहब हैं। इनके बैनर के तले, इनके नक्शे कदम पर, इनके जरिए मशवरे से आप लोगों को प्रमोट करते हैं। आप लोगों के इस तरीके से रिजल्ट से आए हैं, मुझे खुशी महसूस हुई कि ओल्ड सिटी में इतने बेहतरीन अच्छे रिजल्ट न्यू मॉडल हाई स्कूल के आए। और आप ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों को न्यू मॉडल हाई स्कूल में शरीक, चाहे वो नर्सरी से लेकर 10 तक हो, वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक साइंटिफिक माइंड क्या बोलना, दिमाग रखना चाहिए और एक क्या बोलना साइंटिफिक ग्रोथ होना चाहिए। आप लोगों को नए नए क्या बोलना स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोग इंशाल्लाह ताला वहां पे लॉन्च करेंगे, ताकि आपके लिए चार्टर्ड अकाउंट्स, आपके लिए मेडिकल के सीट, इंजीनियर के सीट, अलग अलग मीडिया के सीट्स आप लोगों को क्या करना, सेलेक्ट करना है और अपने न्यू मॉडल हाई स्कूल का नाम रोशन करना है। अभी थोड़ी देर पहले क्या करना, ओवरसीज जो न्यू मॉडल हाई स्कूल्स के एक स्टूडेंट बनके ओवरसीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को भी ऊंचाई तक छूना है, आसमान तक छूना है। आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्या करना, स्किल डेवलपमेंट लेकर मेरी खुशी है, मेरी उम्मीद है कि क्या करना न्यू मॉडल हाई स्कूल इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से 2-3 ब्रांच है। मैं ये चाहूंगा कि ओल्ड सिटी में न्यू मॉडल हाई स्कूल के 10 ब्रांचेस होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। मैं भी न्यू मॉडल हाई स्कूल के साथ हूँ। मैं ये चाहता हूँ न्यू मॉडल हाई स्कूल के ओल्ड सिटी में, न्यू मॉडल हाई स्कूल के ओल्ड सिटी में 10 ब्रांचेस चाहिए और आप लोगों का ताउन चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, New Model High School Dudhbali branch has again scored a top position in the Bahadurpura Mandal by scoring 9.8 GPA out of 10 in the SSC examination 2023. Alhamdulillah, 26 students have scored 10 by 10 in various subjects, and today Janab Mumtaz Ahmed Khan Sahab MLA Charminar Assembly has presented a mementos to all the toppers as well as the students those who have passed out. Today in the Urdu Masan Khilwat, Janab Sohail Khadri Sahab, Mr. Sunam Rajmohan Corporator, Janab Ziauddin Nayyar Sahab, Tamir Millat, they all have presented a mementos to all the toppers of the school and congratulated to all the parents as well as the management and the teachers of the New Model High School. Thank you. Assalamu alaikum. I first of all like to thank all the SSC students those who have completely successfully passed the SSC examination, and I would like to congratulate the parents and the teachers from the New Model High School. From the behalf of the management of the New Model High School, I would heartily congratulate all the students for the successfully passing all the exams, and Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we have scored a 9.8 topper and simultaneously 9.5, 9.2, 9.0 and so on. Alhamdulillah, like 100 students have successfully passed in the SSC examination and 100% result in the merit section. And I would like to congratulate all the students, parents and the teachers for their hard work. Thank you.